فی الوقت جو ہے انجمن کا دستور العمل تیار کیا گیا ہے. اس میں جو ہمارے انجمن کے اغراض و مقاصد یہ ہیں: پہلا، کرناٹک میں اردو زبان و اردو تہذیب کو فروغ کے لیے کوشش کرنا. دوسرا ہے ریاست کے تمام اضلاع، تعلقات جات اور اہم شہروں میں اس انجمن کی شاخ کو قائم کرنا. تیسرا ہے شعراء اور ادباء کی ہمت افزائی کے لیے ان کی نثری اور شعری تخلیفات کو منظر عام پر لانا. چوتھا ہے اردو زبان پر تخلیق و تحقیقی عمل کے لیے کانفرنس، سیمینار اور کارگاہوں کا انعقاد کرنا. پانچواں، پرائمری تا سیکنڈری تعلیمی سطح پر اردو کے ذریعے تعلیم کو فروغ دینا اور کالج تا جامعات تک حسب ضرورت اردو زبان کی تعلیم کو پروان چڑھانا. چھٹا، حسب ضرورت اردو کتب خانے، کتب بینی اور اخبار بینی کے مراکز اور تحقیقی مراکز قائم کرنا. ساتواں، اردو زبان و ادب کے متعلق ابھرنے والے مسائل کے حل کے لیے ریاستی و مرکزی سطح پر ہر ممکن کوشش کرنا. آٹھواں، اردو زبان میں مشاعرے، غزل گوئی، داستان گوئی اور ڈراموں کی محفلیں اور ثقافتی پروگراموں کا انعقاد کرنا. نواں، اردو ادب کے اہم موضوعات پر خصوصی لیکچرز کا انعقاد کرنا. دسواں، تمام سہولیات کے ساتھ اردو زبان سکھانے کے مراکز قائم کرنا. گیارہواں، نادر و اہم اردو مسودوں کا تحفظ اور ان کی اشاعت کا اہتمام کرنا. بارہواں، اردو ادب کے منتخب ادبی شاہکاروں کا کنڑ اور دیگر زبانوں میں ترجمہ کروانا. اسی طرح کنڑ اور دیگر زبانوں کے بہترین ادبی کارناموں کا اردو زبان میں ترجمہ کروانے کا بیڑا اٹھانا. 13واں، اردو زبان و ادب کی خاطر خواہ خدمت انجام دینے والے افراد اور اداروں کی نشاندہی کر کے انہیں اعزازات سے نوازنا. 14، مستحق سرکاری وغیرہ سرکاری غیر سرکاری اسکولوں کی سرپرستی کرنا اور ایسے اداروں کو حسب ضرورت مدد کرنا. 15واں، اردو آنگن واڑی اور اردو مدارس کے درپیش مسائل کو متعلقہ افسروں کے علم میں لانا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا. 16، اردو اسکولوں کے اساتذہ اور ان کی فلاحی کمیٹیوں کے اراکین کی تربیت و اردو خواندگی کے مراکز قائم کرنا. 17، ریاست کرناٹک کے تمام اردو بولنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے آنا تاکہ ان تمام کی خدمات سے اردو زبان کی مجموعی طور پر ترقی ہو سکے. 18واں، اردو زبان و ادب سے وابستہ دیگر اداروں اور انجمنوں اور اداروں کے ساتھ اردو زبان کے کاس کے لیے قومی و بین الاقوامی سطح پر تعاون کرنا. 19، اردو میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو اسکالرشپ، فیلوشپ اور تحقیقی کام کرنے والوں کو مالی امداد دینا. 20، انجمن کے اغراض و مقاصد کے مد نظر منافع بخش کتابوں کی چھپائی کرانا. 21، انجمن کے دستور العمل کے مطابق ایسے تمام کاموں کا بیڑا اٹھانا جن کے ذریعے انجمن کے اغراض و مقاصد پورے ہوتے ہوں. یہ ہمارے مقاصد ہیں، اغراض و مقاصد ہمارے ہیں. کوششیں رہیں گی، اس کے لیے پوری کوشش کریں گے. پھر دوبارہ جو ہے نا ڈسٹرکٹ سطح پہ ایک میٹنگ بلائیں گے، بات کریں گے، بات کر کے جو ہے نا اس کو جس طرح سے انجام تک پہنچانے کی ہم لوگ کوشش ضرور کریں گے. دیکھیے، آج انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کی پہلی جنرل باڈی میٹنگ ہوئی ہے. اس میں کچھ اہم فیصلے لینے تھے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو اغراض و مقاصد ہیں اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہے، مزید اس کو بڑھایا گیا ہے. اور اینول ہمارا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو جنرل باڈی کے سامنے وہ اکاؤنٹ بھی پیش کیا گیا اور اکاؤنٹ کو جو ہے جنرل باڈی نے پوری منظوری بھی دی ہے. اور جو میمورنڈم آف ایسوسیشن ہے اس میں جو ترمیم کرنا ہے اس کے لیے بھی ہم نے جنرل باڈی سے اجازت لینی تھی، وہ بھی اجازت لی ہے. تو کب یہ جو ہے انجمن یہاں پر سرگرم ہوئی ہے اور فی الوقت کتنے ممبرس اس میں شامل ہیں اور مستقبل کے کیا منصوبے؟
देखिए 2022 फरवरी में अंजुमन का मैं सदर बना, उसके बाद जो है अंजुमन जो है इसकी कार्रवाइयाँ शुरू हुई। जैसे कि आप सबको मालूम है अगस्त के महीने में 6 और 7 तारीख को एक सेमिनार भी हुआ यहाँ पे। उसके बाद कई अजला में जो है हमारे प्रोग्राम्स भी होते रहे हैं, मुशायरे भी होते रहे हैं। तो ये पहली जनरल बॉडी मीटिंग है। इस जनरल बॉडी में कुछ फैसले लिए गए हैं, तो जो है जनरल बॉडी में कैसे वो अंजुमन को आगे बढ़ाया जाए इसके ऊपर और जो है मज़ीद हम सब मिलकर काम करेंगे। कई मेंबर्स हुए हैं और भी जो है सबसे गुजारिश की गई है कि हर अजला में जो है मेंबरशिप ड्राइव चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरों को जो है इसमें शामिल करें। हमारे 5 रिटायर्ड ऑफिसरों की जो रिपोर्ट है उर्दू स्कूलों के ताल्लुक़ से, वो मैं समझता हूँ जनवरी के महीने में वो रिपोर्ट जो है मुकम्मल हो जाएगी। तो उसके बाद वो रिपोर्ट जैसे ही वो सबमिट करेंगे हमको पेश करेंगे, उसके बाद जो है एक मीटिंग और अंजुमन की होगी। उसके साथ जो है हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे MLA से MLC से MP, इन सब से मुलाकात करके उस रिपोर्ट के ताल्लुक़ से एक तबादला ख्याल होगा और उसके ऊपर क्या उसे किस तरीके से हुकूमत को उस रिपोर्ट को पेश किया जाए और किस तरीके से जो है उर्दू स्कूलों की हालत को सुधार किया जाए, उसके ऊपर जो है एक फिर दोबारा बहुत जल्द मीटिंग होगी। आप रियासत के दौर में बता रहे थे कि सरकारी फंड लिया जाए, सरकारी ताउन लिया जाए, तो ये एक मशवरा है कि भाई फंड लिया जाए। हम फंड के पीछे नहीं जा रहे हैं। हम हमारे जो अगराज और मकासद हैं कि उर्दू ज़बान को किस तरीके से फ़रोग़ किया जाए उसके ऊपर काम करेंगे। फंड पूछना अलग बात है। देखते हैं कि हुकूमत के क्या तकाज़े हैं इस वक्त। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हुकूमत ने उर्दू अकेडमी को ही जो है 1 लाख का ग्रांट दिया है। तो मज़ीद अगले बजट के बाद जो है इसके ऊपर हम सोचेंगे कि भाई कैसे करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए। हुकूमत के सामने कुछ मुतालबा नहीं, वो रिपोर्ट आने के बाद जो है पहला हमारा जो है मुतालबा यही रहेगा कि उर्दू स्कूलों की फलाह बहबूदी के लिए, जहां उर्दू स्कूलों में अब बिल्कुल किसी वक्त जो है 5 लाख से ज़्यादा तलबा उर्दू स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे थे, आज वो तादाद घट गई है, 4,15,000 के करीब आ गए हैं। 5,000 उर्दू मीडियम स्कूल्स थे, आज जो है वो घटकर जो है 3,850 उर्दू मीडियम स्कूल्स हो गए हैं। तो इसके वजूहात मालूम करना है कि उर्दू स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों कमज़ोर है। तो इस ताल्लुक़ से जो है ये रिपोर्ट आने के बाद हम जो है हुकूमत पे दबाव डालेंगे कि उर्दू जब स्कूलों में पढ़ी जाएगी तभी उर्दू का जो है को तरक्की मिल सकती है। तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। आज जो है अहम ये था कि हमारे जो अगराज मकासद हैं, अभी जो है हमारे नए अगराज मकासद को जनरल बॉडी के सामने सैयद अशरफ साहब ने पेश किया है। आप उनसे बात कीजिए, वो हमारे जो नए अगराज मकासद हैं वो आपको बताएंगे। हम जो है उस अगराज मकासद के ऊपर काम करने का हम जो है सोच रहे हैं। ज़िली सतह से जितने भी आए थे उनको पहले से ही हमने ताकीद कर दी है कि भाई वक्तन जहाँ पर जिस बात की ज़रूरत है वो करने के लिए हमने ताकीद कर दी है। यहाँ माह नवंबर में जितनी भी ज़िले सतह हमारी कमेटियाँ हैं, उन कमेटियों ने बेटा भाई तुम्हारा भी पूछना है कि हर ज़िले में जितने भी हमारे ज़िले में कमेटियां हैं वहाँ पर माह नवंबर में यौम उर्दू भी मनाया गया, यौम इकबाल भी मनाया गया और जितने भी यौम टीपू शहीद भी मनाया गया, अबुल कलाम आज़ाद पर भी वहाँ पर सेमिनार और ये हुए और ये मुसलसल की जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हमारे हैं वहाँ पर ये काम हुए हैं। और अब जहाँ पर हमारी कमेटी नहीं है उसमें दौरा किया, उसमें हमने बनाया कोलार के लिए अब एक नई कमेटी बनाई गई है। कोलार की कमेटी जो है 17 तारीख को एक बहुत बड़ा वहाँ पर कन्वेंशन रखा है असातिज़ा का और इसका। और चिकमंगलूर की कमेटी बनी नहीं थी, उनसे भी रब्ता किया गया और आज वो वहाँ पर आए और उन्होंने ये बताया कि 20 जनवरी को इंशाअल्लाह वो भी वहाँ पर एक कन्वेंशन करने वाले हैं। इसी तरीके से कोलार में कमेटी नहीं बनी है। कोलार को हम गए थे, कोलार के वहाँ पर अमायदीन को जो उर्दू के चाहने वाले हैं
उनको पकड़कर हमने एक वहाँ के कोलार के सदर और तमाम ताल्लुकात के सदरों को मुकर्रर किया और उन तमाम लोगों ने हमें यकीन दहानी दी है कि 17 जनवरी को एक बहुत बड़ा वो भी कन्वेंशन करने वाले हैं। जिन जिन अजला में नहीं हुई है उन अजला में हम बिल्कुल पीछे लगे हैं। 4-4 बार मैसूर जाकर आए। मैसूर में जो है एक कमेटी है वो फाल नहीं है, ये शिकायतें थी, उनसे मुलाकातें की और इंशाअल्लाह वहाँ की भी एक फाल कमेटी मंजर आम पर आ जाएगी, काम करेगी। हम कोशिश में हैं कि बिल्कुल करते रहें। चंदपटन में भी कमेटी है, वो भी वक्त पर काम कर रहे हैं। रामनगर डिस्ट्रिक्ट में टुमकुर में एक कमेटी बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर हो गया। अभी टुमकुर के हमारे स्टेट सेक्रेटरी जो है टुमकुर से टिप्टूर से ताल्लुक़ है, उन्होंने बताया कि इंशाअल्लाह जनवरी में वहाँ भी एक पूरा काम हो जाएगा। इसी तरीके से धारवाड़ में, हुबली में जिस जगह है वहाँ तमाम हो रहे हैं और बाकी जो अजला हैं धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास वहाँ भी कमेटियाँ बनाना है। मैं वहाँ के एक मोतबर आदमी से बात की है और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह वहाँ भी कमेटियाँ बहुत जल्द बन जाएंगी। अजला में कमेटियाँ अब फिल वक्त हमारी जो है 17 अजला में कमेटियाँ हैं। 30 में 17 में है, उसमें से 3-4 को तो आप बिल्कुल ना ही समझिए। कुर्ग में कमेटी बनाने का कोई मकसद नहीं है, मंगलोर में कोई कमेटी बनाने का मकसद नहीं है, जबकि हमारी कारवार में कमेटी है, भटकल में है हमारी कमेटी, बेलगाम में है, बीजापुर में है, रायचूर में है। वहाँ जहाँ पर उर्दू स्पोकन जितनी भी जगह है वहाँ तमाम कमेटियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सदर और जनरल सेक्रेटरी साहब का काम है, वो कर रहे हैं। इंशाअल्लाह तमाम अजला में जो है कमेटियाँ फॉर्म होंगी। मैं मेरी तरफ से कुछ मशवरे पिछले मीटिंगों में भी, सेमिनार में भी किया था कि उर्दू की तरक्की के लिए जो मसाजिद है और अंजुमनें हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए, स्कूल्स अडॉप्ट करने के लिए जो है पेशगी किए करके उनसे जो है मशवरा करें और जो भी आगे आया वो अगर करेंगे तो बहुत जल्दी तरक्की होगी बच्चों की उर्दू में, उर्दू के लिए। और दूसरा जो है जो हमारे IAS और KS ऑफिसरों की जो कमेटी फॉर्म हुई थी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उसका मशवरा जो है उन्होंने एक किताब से भी ये किया है। उसके आने के बाद जो है हमको मालूम होगा कि क्या क्या ज़रूरतें हैं और उसके बावजूद भी हमारी स्टडी के मुताबिक जो है सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बहुत ख़राब है। स्कूलों के, उर्दू स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही ख़राब है, जहाँ पर जो है टॉयलेट्स नहीं हैं और बिल्डिंगें जो है खस्ता हाल हैं, दीवारें गिरने वाली हैं। गिरने वाली क्या, ऐसा लगता है कभी कभी बच्चे जो है बैठने के लिए तैयार नहीं होते। और तीसरा जो मेरा मशवरा है कि नया जनरेशन, हमारे बच्चे टीवी देखकर जो है उनके भी जो ख्यालात जो है ऊंचे हैं और ऐसे वैसे जगह जाके जो है चाहे उर्दू हो इंग्लिश हो, खस्ता हाल बिल्डिंग में आप बिठा के वहाँ फ्रेंच या इंग्लिश या कन्नड़ा भी पढ़ाएं तो उन्हें पढ़ने वाला नहीं है। तो उनके लिए अच्छा आज के हिसाब से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उसकी सहूलत जो है एक एक करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं सरकार से, मगर सरकार से मिलने की नाउम्मीद है। इसीलिए हम चाहते हैं कि मालदार हजरात आगे आए, उनके इलाकों में जो है एक एक या दो स्कूल अडॉप्ट करें। जहाँ जहाँ भी अडॉप्ट किया है स्कूल, हाँ स्कूल किया, वहाँ की तरक्की हुई है। जैसे NTJ में कर रहे हैं वहाँ भी तरक्की हुई है, ये भी की है। तो कम्बोज की भी जो है तरक्की हुई है। तो उसी हिसाब से मैंने भी जो है 3 साल पहले जो अलीपुर एक मकाम वहाँ पर उर्दू गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल जो है अडॉप्ट करके, जहाँ पर 80 या 150 बच्चे थे टोटल, दोनों मिला के 230 थे। मैं जब इंचार्ज लिया, अडॉप्ट किया तो 400 बच्चों तक लेके आया था और दूसरे हजरात अभी अडॉप्ट किए हैं, चला रहे हैं इंशाअल्लाह। तो इसी तरह से जो है मालदार हजरात भी आ गए हैं और मसाजिद और उसमें उलमा हजरात जो पेश इमाम हैं और इदारे हैं जो अंजुमन हैं, वहाँ के लोग भी जो है एक एक स्कूल भी जैसे टैंगडाडा में महफिल निसा जो है हमारे, हम उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो भी अडॉप्ट कर रहे हैं। जिस तरह से जो है तरक्की हो रही है, हम चाहते हैं कि इस तरह से जो अडॉप्ट करके जो है आगे बढ़े। शुक्रिया। शहर बेंगलुरु में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक की जनरल बॉडी मीटिंग। रियासत की कांग्रेस हुकूमत के रवैये पर नाराजगी और बरहमी का इजहार।
उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की को नज़रअंदाज करने का कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम। मुस्लिम मिनिस्टर्स और मुस्लिम एमएलएस की खामोशी पर भी उठे सवालात। 23 दिसंबर 2023 बरोज हफ्ता बेंगलुरु के शिवाजी नगर में अल-अमीन कंबल पोश स्कूल के डॉक्टर मुमताज अहमद खान मेमोरियल हॉल में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक की मजलिस उमूमी का अहम तरीन इजलास मुनक़द हुआ। अंजुमन के सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ की सदारत में हुए इस इजलास में मुख्तलिफ अज़ला के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़, उर्दू स्कूलों की हिफाजत और तरक्की के लिए तवील गुफ्तगू और कीमती मशवरे इस इजलास में पेश किए गए। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के दस्तूरुल अमल को भी मंजूरी दी गई। अंजुमन के नायब सदर सैयद अशरफ ने अगराज व मकासिद पेश किए। इस मौके पर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, मुबीन मुनव्वर, एजाज अली जोहरी, सैयद अशरफ और दीगर ने ये पैगाम दिया कि उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए हुकूमतों पर भरोसा करने, उम्मीदें लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी मादरी ज़बान को बचाने के लिए उर्दू वालों को आगे आना होगा। अपनी मेहनत मालो दौलत खर्च करते हुए इस प्यारी, मीठी और खूबसूरत ज़बान को फ़रोग़ देना होगा। उर्दू बोलने वाले ही अगर अपनी मादरी ज़बान का हक अदा नहीं करेंगे तो दीगर ज़बानों के ग़ुलाम बनकर रह जाएंगे। अपनी तारीख़, तहज़ीब, सक़ाफ़त से महरूम होकर रह जाएंगे। लिहाजा मौजूदा दौर में उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए हर शख्स को आगे आने की ज़रूरत है। समाजी व मिली तंजीमें और साहब मालो दौलत अपने अपने इलाकों में उर्दू स्कूलों को गोद लेकर उर्दू ज़बान की खिदमत अंजाम दें। इस मौके पर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि सरकारी उर्दू स्कूलों का जायज़ा लेने के लिए अंजुमन के तहत वजीफ़ेयाब अफसरों पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई है और ये कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद हुकूमत से रुजू होगी। इस इजलास में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के आइंदा प्रोग्रामों और मंसूबों की भी जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर बेंगलुरु के बीईटी तालीमी इदारे की खिदमात और कोशिशों की सताइश करते हुए कहा गया कि बीईटी स्कूल और कॉलेज में नौजवान नस्ल को उर्दू तालीम से आरास्ता करने, उर्दू ज़बान व सक़ाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए नुमायां कोशिशें की जा रही हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।